Hello everyone, welcome back. So this is our third video and we are discussing about the question paper of 2020 agriculture optional. Now let's start from where we left in the last video, that is we were discussing agronomy, and we have discussed the last question which we discussed was define water harvesting along with different methods. Okay, till here we have covered, and in this video we will be discussing the rest of the agronomy, weed science and agroecology that will be covered in this video. Now coming to the question, so define water use efficiency and water productivity. Just they have asked the definition, then list the crops having high and low water use efficiency. So this is a question where there is you need to have some clarity, because even in the textbooks these definitions, the definition of water use efficiency and water productivity, they are used interchangeably. Now there is a debate going on in the agronomic circles that water use the definition of water use efficiency is not correct. Okay, old school thought and what we have read in the textbooks is the amount of dry matter produced per unit of water. Okay, grams per volume of water or kg of water, जितने जो भी हम लोग दे रहे हैं. So old school thought says that is the definition of water use efficiency. But new school of thought क्या है कि the amount of water used to produce the dry matter or the yield, that is water productivity. वाटर प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन है वो वाटर यूज एफिशिएंसी का डेफिनेशन नहीं है. ओके जो हम लोग आज तक वाटर यूज एफिशिएंसी का डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, एंग्रो का मटेरियल हो, टीएनए का हो और टेक्स्ट बुक में है, वो सही डेफिनेशन नहीं है. अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिसर्च पेपर्स वो डेफिनेशन है वाटर प्रोडक्टिविटी का. वाटर यूज एफिशिएंसी का डेफिनेशन अलग है. नाउ क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में तुमको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं लिख के लाया हूं, मैं तुमको बता रहा हूं. आई विल डिक्टेट इट, तुम उसको लिख सकते हो, राइट. सो वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है, ये क्या बोलता है? वाटर यूज एफिशिएंसी इज टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूटिलाइज्ड बाय द plant in the evapotranspiration process. It is the ratio of water which is utilized by the plant in the evapotranspiration process to the water applied. ये ratio है. Okay, it is a dimensionless parameter. So it is a dimensionless ratio between the amount of water utilized by the plant in the evapotranspiration process and to the amount of water which is applied. So जब हम आज तक वाटर यूज एफिशिएंसी के डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है अकॉर्डिंग टू द न्यू थॉट, इसलिए शायद से ये क्वेश्चन पूछा है. मे बी दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. डिफाइन वाटर यूज एफिशिएंसी एंड वाटर प्रोडक्टिविटी, दोनों का डेफिनेशन बताने के लिए बोला है, बिकॉज ये पता होगा कि टेक्स्ट बुक्स में वाटर यूज एफिशिएंसी का डेफिनेशन जो दिया हुआ है वो एक्चुअली वाटर प्रोडक्टिविटी का है अकॉर्डिंग टू द न्यू स्कूल ऑफ थॉट. सो जो आज तक हम लोग बुक्स में पढ़ रहे हैं वो गलत है. तो अकॉर्डिंग टू द न्यू स्कूल ऑफ थॉट वाटर प्रोडक्टिविटी जो ड्राई मैटर वाला डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस्ड और अमाउंट ऑफ द यील्ड, अमाउंट ऑफ द ड्राई मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ वाटर, that is the definition of water productivity, not water efficiency, water use efficiency. Okay, so water use efficiency is a dimensionless ratio and its theoretical limits are between 0 and 1, or if you are taking in percentage it can be between 0 and 100%, right. So efficient water use or water use efficiency is defined as the ratio between actual volume of water used for a specific purpose, actual volume of water used for a specific purpose and the volume of water extracted or derived from a supply source for the same purpose. यानी
जो पानी इवोपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस में प्लांट यूज कर रहा है divided by amount of water applied. So amount of water utilized by the plant in the evapotranspiration process divided by total volume of the water applied from a source. That is the definition of water use efficiency. Okay. Now it depends upon storage efficiency, conveyance efficiency and irrigation efficiency. अब irrigation efficiency क्या है? Irrigation efficiency का, now you might be confused between irrigation efficiency and water use efficiency. So सर फिर irrigation efficiency और water use efficiency में क्या difference है? Irrigation efficiency क्या है? Ratio between volume of water used by the plants, okay, through the evapotranspiration process and volume that reaches the irrigation plots. जो irrigation plots को reach हो रहा है उसके साथ ratio है the amount of water used by the plant through evapotranspiration process divided by amount of water reached to the irrigation plot. क्योंकि conveyance में भी loss हो सकता है ना, there can be loss in the conveyance also. So irrigation efficiency और water use efficiency में minute difference है because हमने इसमें conveyance loss भी लिया है. Now अब water productivity क्या है? जो हम लोग पहले water use efficiency के लिए use कर रहे थे ना definition, अब वो water productivity के लिए use करेंगे. So amount of dry matter produced by per quantity of water or amount of dry matter produced divided by उसका ratio है between the amount of dry matter produced and amount of water utilized. So water productivity and water use efficiency का clear cut इन दोनों में difference पता है कि नहीं? जो ये अभी जो चल रहा है ना conflict चल रहा है new school of thought और old school of thought के बीच में, ये जो चल रहा है ये पता है कि नहीं आप लोगों को? इसलिए शायद से ये वाला पूछा है. अदरवाइज हम लोग वाटर यूज एफिशिएंसी का जो डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स में भी वही है. सो दैट मे बी द रीजन दे हैव आस्क्ड दिस कि इन लोगों को क्लियर कट डेफिनेशन डिफरेंस पता है कि नहीं वाटर प्रोडक्टिविटी और वाटर यूज एफिशिएंसी के बीच में, इसलिए शायद से पूछा होगा. देन एंड एग्जाम्पल्स देने हैं तुमको. सो अगर लो वाटर यूज एफिशिएंसी वाले क्रॉप्स अगर तुम देखोगे तो we have cotton, pulses, इनके एग्जाम्पल्स लिख सकते हो तुम. हाई वाटर यूज एफिशिएंसी में रागी, ज्वार, बाजरा, राइस, ये तुम एग्जाम्पल्स दे सकते हो हाई वाटर यूज एफिशिएंसी में. देन व्हाट इज इरिगेशन शेड्यूलिंग? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर व्हाइल डिसाइडिंग इरिगेशन शेड्यूल्स फॉर डिफरेंट रीजन्स एंड क्रॉप्स? नाउ इरिगेशन शेड्यूलिंग इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, एग्रोनॉमी में ये रेगुलरली दिखाई देता है. सो इसका तो नोट्स बना ही लिया होगा आप लोगों ने. सो इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या होता है? सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, अमाउंट ऑफ वाटर गिवन इन इरिगेशन, ओके, एंड नंबर ऑफ टाइम्स, ये सारा इरिगेशन शेड्यूलिंग के अंदर आता है. कितनी बार तुमने पानी दिया, कितनी बार इरिगेशन कर रहे हो, और वीकली वंस कर रहे हो या वीकली ट्वाइस कर रहे हो, ओके, एंड टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना अप्लाई कर रहे हो. ऑल दिस कम्स अंडर इरिगेशन शेड्यूलिंग. देन इरिगेशन शेड्यूलिंग के मेथड्स क्या क्या हैं? प्लांट बेस्ड मेथड है, ओके. देन उसमें तुम डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट यू कैन डिसाइड व्हेन टू. अब वो विल्टिंग सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तब तुम इरिगेट कर सकते हो. और अल्टर्ड प्लॉट टेक्निक है तुम्हारे पास प्लांट बेस्ड अप्रोच में, वेर यू विल यूज ए इंडिकेटर प्लांट बाय अल्टरिंग द टेक्सचर ऑफ द soil, okay, 1 मीटर इंटू 1 मीटर एंड 1 मीटर डेप्थ में गड्ढा खोद के, एक गड्ढा खोद के 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर उसका सॉइल को सैंड के साथ मिक्स करके यू इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल ऑफ दैट प्लॉट. वहाँ पर फिर तुम इंडिकेटर प्लांट्स लगाते हो, सनफ्लावर, ओके. ये तो एक ही व्यास में भी दिया हुआ है, ओके. सो देन वी हैव सॉइल मॉइस्चर टेंशन अप्रोच, तो टेंशियोमीटर यूज़ करते हैं. पैन एवोपरेट क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच यूज़ कर सकते हो, ओके. सो देर आर डिफरेंट अप्रोचेस फॉर इरिगेशन शेड्यूलिंग. देन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द इरिगेशन शेड्यूल्स फॉर डिफरेंट रीजन्स एंड क्रॉप्स? नाउ वाटर डिमांड फॉर डिफरेंट क्रॉप्स इज इट वेरीज क्रॉप टू क्रॉप. कुछ क्रॉप से जहाँ पर इरिगेशन ज़्यादा देना है, like sugar cane, it requires more irrigation, whereas in case of pulses it requires
लेस नंबर ऑफ इरीगेशन, और जनरली इट इज़ रेन फेड, अगर इरीगेशन दे भी रहे हो तो बहुत कम उसको चाहिए. देन यू सी द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, इवापोट्रांसपिरेशन रेट कितना है उसका, उस एरिया का तुम्हारा इवापोरेशन कितना है, टेम्परेचर्स कैसे हैं वहाँ का, सॉइल का टेक्सचर. सैंडी सॉइल से तो तुमको ज़्यादा इरीगेशन देना पड़ेगा. ओके, इफ़ द सॉइल्स आर क्लेई, लेस नंबर ऑफ इरीगेशंस आर रिक्वायर्ड. ऑर्गेनिक मैटर कितना है, बिकॉज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड. सो ऑल दीज फैक्टर्स यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन. देन डिस्क्राइब प्रिसिशन एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर. सो these are directly mentioned in the syllabus also. ये तो directly syllabus में भी mentioned है. Okay, and it is asked only for 10 marks. Now you have to restrict yourself. ये बहुत मुश्किल है क्योंकि प्रिसिशन एग्रीकल्चर के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन तुमको बहुत कम लिखना है because it is only for 10 marks and you have to write conservation agriculture and precision agriculture दोनों. Now start with the definition. What is precision agriculture? उसका मेन थीम क्या है? नीड बेस्ड इनपुट. ओके, जहां पर चाहिए और कितना अमाउंट में चाहिए, एक्यूरेटली वी कैन अप्लाई. ओके, ब्लैंकेट एप्लीकेशन नहीं करते हैं यहाँ पर. वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड एंड इन हाउ मच क्वांटिटीज इट इज रिक्वायर्ड, एक्यूरेटली we will apply them. So need based input application, that is the main theme behind precision farming. So information communication technology and variable rate technology हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर. अगर तुम इक्विपमेंट या फिर क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो जीपीएस, ड्रोन्स, वेरिएबल रेट एप्लीकेटर्स, ऑल दीज आर यूज्ड इन प्रिसिशन एग्रीकल्चर. नाउ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्या है, अगेन तुमको 5 मार्क्स के लिए लिखना है. नाउ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर comes under the broader you can say umbrella of sustainable agriculture. Sustainable agriculture वाले umbrella में ही conservation agriculture आता है. Now conservation means you are conserving something. क्या conserve कर रहे हो? For the future generations we are trying to conserve soil and water mainly. Okay, conservation agriculture में तीन main principles हैं. एक तो least disturbance of the soil, जहाँ पर zero tillage या conservation tillage की हम लोग बात करते हैं. Then we have permanent soil organic covering. Then diversified crop rotation, especially including a legume. So those are the principles. उसके basis में तुम लोग conservation agriculture के जो practices हैं we follow that. So 5 marks के लिए लिखना है. So you have to limit your words. और points, सबसे important points ही लिखो, कचड़ा मत भरना starting में ही. See, that is how impression is made. कम मार्क्स के लिए लिखा है, राइट एक्यूरेट, यूज एक्यूरेट टर्मिनोलॉजी एंड बुलेट पॉइंट सीधा. इसमें ज्यादा पैराफ्रेजिंग करके टाइम पूरा खत्म हो जाएगा. 5 मार्क्स का ही है. डेफिनेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करना है एंड राइट 1 वर्ड्स में मेन क्या टेक्नोलॉजी या फिर क्या प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, जस्ट दैट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइस व्हीट क्रॉप रोटेशन इज वेरी कॉमन इन नॉर्थ इंडियन एग्रीकल्चर. Discuss and describe the advantages and disadvantages of crop rotation according to the principles of crop rotation. Now there are 2 parts in the question. First, ये क्या पूछ रहा है कि राइस एंड व्हीट रोटेशन कॉमन क्यों है नॉर्थ इंडिया में. सेकेंड पार्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स. सो फर्स्ट हम लोग सेकेंड वाला आंसर हम लोग, क्योंकि ये बहुत फेमिलियर आंसर है, क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं कैसे लिखना है. तो पहले प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन क्या है समझा दो. मेन क्या है, यू शुड नॉट यू शुड ऑलवेज हैव ए लेग्यूम इन ए रोटेशन, क्योंकि फर्टिलिटी मेंटेन करता है, एरोजन को प्रिवेंट करेगा. बिकॉज डीप रूटेड क्रॉप एंड शैलो रूटेड क्रॉप को अगर तुम एरोजन प्रमोटिंग एंड प्रिवेंटिंग वाला प्रिंसिपल, देन डू नॉट प्लांट द क्रॉप्स ऑफ द सेम फैमिली इन ए रोटेशन. हमें कभी जब रोटेट कर रहे हो तो सेम फैमिली के साथ मत करो, बिकॉज पेस्ट एंड डिजीज विल बी द सेम. So common होने के chances हैं. So there are certain principles which you have to follow under and use the crops which can take nutrients from different layers. Same layers से nutrient लोगे तो उस layer का nutrients खत्म हो जाएगा. So different depth से nutrient वो crops absorb. First season में go for tap root crops. Pulses लगाओगे तो they take nutrients from deeper layers and they also fix nutrients. Next season में shallow rooted crops, they will take the nutrients from upper layers, right? So there are certain principles which you have to follow under crop rotation. Then advantages क्या है crop rotation के, disadvantages क्या हैं, link करो उसके साथ, right? ये वाला क्वेश्चन तो कॉमन है बहुत, and it is, I mean everybody
who is preparing for agriculture optional, they have notes prepared for this already. तो ये तो pet question है. Then first part में आता है why rice wheat cropping is common. Now first thing wheat के बारे में आते हैं हम लोग. राइस का तो एक मेन रीजन है बिकॉज इरिगेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल, सॉइल्स आर फर्टाइल सॉइल्स एंड इरिगेशन इज अवेलेबल. ओके, एंड प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगा वहां पर, इरिगेशन अवेलेबल है, सॉइल्स आर फर्टाइल. ओके, राइस यूज करने का तो मेन रीजन है कि पंजाब ये जो एरिया है, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इरिगेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल एंड प्रोडक्टिविटी ज्यादा देता है. देन वीट का क्या रीजन है? ओके, वीट कैन बी ग्रोन टिल मध्य प्रदेश तक तुम वीट ग्रो कर सकते हो. ओके, रबी सीजन में ग्रो करते हैं बिकॉज वीट रिक्वायर्स ए पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज फॉर फ्लावरिंग एंड ईल्ड. सो कूल टेम्परेचर्स चाहिए वीट को, दैट इज अवेलेबल इन नॉर्दर्न पार्ट. सदर्न पार्ट्स में अवेलेबल नहीं है वो टेम्परेचर तुमको. ओके, मे बी इन हिली एरियाज, बट नॉर्दर्न प्लेन्स में ही कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, तो विंटर सीजन्स में यू हैव दैट पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर विच इज सूटेबल फॉर वीट. वीट कॉमन है एंड बिकॉज ये भी लिख सकते हो सोशल रीजन से, स्टेपल फूड है. दीज टू क्रॉप्स आर मेन स्टेपल फूड. ओके, राइस एंड वीट आर मेन स्टेपल फूड. राइस तो साउथ में भी ग्रो करते हैं, नॉर्थ में ग्रो करने का एक मेन रीजन है इरिगेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल एंड लैंड्स आर फर्टाइल. प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो हाई, यील्ड ज्यादा देता है तो फार्मर्स को ज्यादा इनकम आने का चांस है. सेकेंड रीजन इज टेम्परेचर. वीट के लिए जो टेम्परेचर चाहिए दैट इज मोस्ट सुटेबल in the northern plains, especially if irrigation is available then it is well and good. Otherwise तुमको northern areas में तुमको western disturbances भी मिलता है. and तुम cultural reasons भी रख सकते हो, staple food है bread, wheat जो है it is consumed all over North India as a staple food. and food grains हमारा stability के लिए these two are the main food grains. हमारा food security के लिए these two crops are important. तुम political reasons, okay, सोशियो इकोनॉमिक रीजंस एंड क्लाइमेट सबसे इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज सदर्न पार्ट्स में टेम्परेचर्स आर नॉट सूटेबल फॉर वीट कल्टिवेशन, ओनली इन नॉर्दर्न प्लेन्स बिकॉज विंटर में वहां पर टेम्परेचर लो जाता है. सो दीज आर द मेन रीजंस. अदरवाइज तुम एक बार इंटरनेट पे चेक करो, देर आर प्लेंटी ऑफ पॉइंट्स, यू विल गेट न्यूमरस पॉइंट्स टू राइट अंडर दैट आंसर. देन डायरेक्टली क्रॉप के ऊपर क्वेश्चन आया है. See, you cannot ignore crops, but remembering all the crops is also difficult because they might ask you particular parts from package and practice of a crop. जैसे शुगर केन में पूछ लिया क्या है, improved varieties बताओ क्या क्या है, what are the hybrid varieties or improved varieties. Then method of sowing and seed rate क्या है. Now seed rate depends, north और south का seed rate थोड़ा सा अलग होता है. नॉर्थ में यू कैन हैव अराउंड 35,000 सेट्स. ओके, ईच सेट हैज एटलीस्ट 3 बर्ड्स होने चाहिए उसमें. नाउ सोइंग मेथड्स यू कैन गो फॉर ट्रेंच मेथड और यू कैन गो फॉर फर्रो और फ्लैट प्लेसमेंट, फर्रो प्लेसमेंट और ट्रेंच मेथड. 3 मेथड्स हैं. फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन मैनेजमेंट, जनरली फर्टिलाइजर जो मैनेजमेंट है ये चेंज होता रहता है, बट जनरली एक्सेप्टेड जो है 3:1:2 ये वाला है. 300 kg नाइट्रोजन, 100 kg फॉस्फोरस एंड 200 kg पोटेशियम. इंटरकल्चरल ऑपरेशंस में गो फॉर वीडिंग. तुमने यहाँ पर इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर बता दिया, वीडिंग तुमको इंटरकल्चरल ऑपरेशन में वीडिंग एक इंपॉर्टेंट है. कौन से वीडिसाइड्स यूज करते हो तुम. देन कल्चरल ऑपरेशंस में अर्थिंग अप एक लिख देना, अर्थिंग अप क्या है. दूसरा प्रॉपिंग एंड रैपिंग, दीज आर द प्रैक्टिसेस वेयर ड्राइड लीव्स ऑफ केन्स फ्रॉम 2 different rows आर टाइट टुगेदर सो दैट वो लॉजिंग से बच जाए, गिरे ना इजीली. तो रैपिंग एंड प्रॉपिंग एंड वीड मैनेजमेंट, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस में वीड मैनेजमेंट पक्का. देन प्लांट प्रोटेक्शन में आओगे तो तुम क्या बोलते हैं, स्टेम बोरर लिख सकते हो. ओके, देन यू कैन गो फॉर डिजीज में
You can go for तुम्हारा red rot of sugarcane which is endemic to UP स्पेशली, वो वाला तुम इसमें मेंशन कर सकते हो. मेन डिजीज है दो डिजीजेस, दो पेस्ट, उससे ज़्यादा मत लिखना. उसका कंट्रोल मेजर बता देना लिख के, साइंटिफिक नेम एंड देयर कंट्रोल. फंगिसाइड, सिस्टमिक फंगिसाइड्स मेंशन कर देना. ओके, सो improved varieties, method of sowing and seed rate, fertilizer and irrigation management. इरिगेशन में भी है. सी शुगर केन में नॉर्मली तुम वीकली वंस इरिगेशन देते हैं, बट टिलरिंग के टाइम पे यू कैन गो फॉर वंस इन 10 days. अदरवाइज वीकली इरिगेशन देना पड़ता है शुगर केन को. सो क्रॉप्स, इट इज़ वेरी रिस्की टू स्किप क्रॉप्स. क्रॉप्स को तुम स्किप नहीं कर सकते. सी जो मेन क्रॉप्स है एटलीस्ट उसके पैकेज एंड प्रैक्टिसेस पढ़ के जाओ. जैसे राइस है, राइस में भी डायरेक्ट सीडेड राइस पूछ सकता है, श्री कल्टीवेशन कैसे करते हैं वो पूछ सकता है, या फिर तुम्हारा लो लैंड राइस कल्टीवेशन, तो डायरेक्ट सीडेड राइस भी पूछ सकता है. डायरेक्ट सीडेड राइस कैसे कल्टीवेट करते हैं, श्री कल्टीवेशन मेथड के बारे में बोलो, ऐसे भी पूछ सकता है, या फिर लो लैंड राइस कल्टीवेशन. एंड वीट, राइस एंड वीट एंड मेज, ये 3 तो पढ़ लेना भाई. अगर हो सकता है तो सोरगम भी एक्सट्रैक्ट पढ़ लेना. पल्सेस में चिकपी, पीजेनपी, सॉरी पीजेनपी, चिकपी एंड पीजेनपी. देन कॉटन, कमर्शियल क्रॉप्स में कॉटन, शुगर केन. इतना तो कम से कम देख के जाना, एटलीस्ट दिस मच. क्रॉप्स पूरा स्किप कर दो, देन दैट इज अ रिस्की मूव. ओके, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में दे दिया तो फंस जाओगे. सो एटलीस्ट इतना तो पढ़ के जाओ. ये 3 क्रॉप्स तुम ग्रेन्स में, पल्सेस में 2, और ऑयल सीड भी एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ग्राउंडनट भी पूछा है. ग्राउंडनट एक देख लेना, ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट पूछ सकता है. ओके, सो दैट वाज अबाउट एग्रोनॉमी. If you look at wheat science 40 मार्क्स का दिया है. जनरली wheat science 20 मार्क्स और एट मोस्ट 30 देता है, बट इस बार 10 मार्क्स का वेटेज ज्यादा आया, 40 मार्क्स. सो डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग थ्रेट्स ऑफ पार्दीनियम वीड इन द कंट्री, देन राइट इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ वीड मैनेजमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स. सो 2 पार्ट्स आर देयर. सो फर्स्ट में पार्दीनियम स्ट्रोफोरस, नाउ दैट इज ए नॉक्शियस वीड, एबनॉक्शियस वीड बोल सकते हो. दोज वीड्स विच आर वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. Once they establish, I mean, they are very difficult to eradicate. उनको वहाँ से हटाना बहुत मुश्किल है. Now, पार्दीनियम का infestation was first recorded in some 1810, वो नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, फिर धीरे धीरे 1970s तक पूरे इंडिया में स्प्रेड हो चुका था. ओके, सो पार्दीनियम, देर आर सेवरल रीजन्स for which we need to control Parthenium, because Parthenium causes damage to humans, to crops, and it is you can say ecologically damaging weed, or you can say it is उनको क्या बोलते हैं यार, invasive, एक तरह का invasive species है. Okay, so there are several reasons why we have to be, I mean why we have to be threatened because of Parthenium. First reason, इट इज अगर तुम उसके कैरेक्टर्स में जाओगे, हैबिट, फर्स्ट यू हैव टू डिस्क्राइब क्यों वो थ्रेट है. फर्स्ट, इट हैज स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया में स्प्रेड हो चुका है. दूसरा, सेकेंड पॉइंट इज उसके हैबिट क्या है. इट इज फोटो इंसेंसिटिव, थर्मो इंसेंसिटिव, यानी कोई भी टेम्परेचर में, कोई भी फोटो पीरियड में इट कैन फ्लावर. ओके, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन ए पर्टिकुलर फोटो पीरियड और थर्मो पीरियड. इट है, उसका जो सीड्स है दे हैव लॉन्गिविटी, उसका लॉन्गिविटी बहुत सालों तक वो वायबल रह सकता है. ओके, दे आर डॉर्मेंट, दे हैव डॉर्मेंसी. सो जब तक कंडीशन सूटेबल नहीं होते तब तक वो जर्मिनेट नहीं होगा. ओके, इट हैज़ डॉर्मेंसी एज ए कैरेक्टरिस्टिक, इट हैज़ हायर लॉन्गिविटी देन थर्मो इंसेंसिटिव, फोटो इंसेंसिटिव. ओके, इट कैन ग्रो इन एनी टाइप ऑफ सॉइल. सो एक बार एस्टैब्लिश हो गया, इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस न्यूमरस सीड्स. ओके, एंड इट्स पोलन जो है, पोलन दैट इज अगेन एलर्जिक. ओके, सो normally if there is Parthenium infestation, the recorded yield losses
are up to 40%. So your yield loss can be up to 40% if there is Parthenium infestation and if you don't control it. 40% तक yield loss हो सकता है, and especially fodder crops के cases में it can go up to 90%. The yield losses can go up to 90%. Now it is very difficult to manage because even as a wild grass or weed, wild weed की तरह है, even it is not palatable. Animals खा भी नहीं सकते इसको. Okay, it is harmful for milk yielding animals. जो दूध देने वाले animals है उनके लिए harmful भी है. Okay, there are health effects on animals also. Humans में dermatitis, तुम उसको control खींच भी नहीं सकते हो, हाथ नहीं लगा सकते, dermatitis है, and they are also allelopathic to different crops, especially Parthenin. Okay, Parthenium secretes sesquiterpenoids which are called, I mean उसका जो नाम दिया है Parthenin है. Okay, okay, Parthenin, this is sesquiterpene lactone. Okay, so this particular chemical is इसका जो chemical name है और chemical जो compound है that is sesquiterpene lactone. Parthenin, the chemical nature of that compound. Now along with that there are many phenolic acids are also secreted which are allelopathic. Okay, so anic acid है, caffeic acid है, okay, which are allelopathic to different crops. तो दूसरे crops को growth को ये reduce कर देता है. Humans के लिए भी allergic है and dermatitis ये सब है and pollen grains से allergy आता है, वो सारे. There are plenty of points to write under Parthenium. एक बार नेट पे चेक करो, बहुत सारे मिल जाएंगे तुमको articles, harmful effects of Parthenium. You can write many points under that. उसके बाद second part, integrated methods of weed management with suitable examples. Now this question has been asked several times. So cultural method, mechanical method, biological method, chemical method. Integrated weed management means combining all the components so that we can reduce the number of weed below the threshold limit. That is the meaning of integrated weed management. Examples के साथ तुम दे सकते हो. Now define crop weed competition. Describe various factors affecting crop weed competition. Explain the factors affecting efficacy of herbicides. So there are three questions. एक तो पहले definition पूछा है crop weed competition का क्या है. This question I have uploaded a video, model answer दिया है मैंने YouTube में. Crop weed competition क्या है and various उसमें various factors affecting crop weed competition नहीं दिया है मैंने. So crop weed competition and describe various factors affecting crop weed competition. बहुत सारे हैं इसमें. Various factors में you can go for number of irrigations कितना दे रहे हो तुम लोग. Okay, then nutrient application, spacing between the crops. Okay, transplanted crop है या फिर direct sowed crop है, क्योंकि transplanted crops में advantage होता है. Okay, they have a growth advantage of 20 to 25 days. 25 से 30 दिन का उनके पास advantage है. These transplanted crops can suppress the weeds. If you have sown directly, then irrigation के बाद weeds grow faster than the crops, क्योंकि crop के seeds को germinate करने में 5-6 दिन तो लग जाते हैं, तब तक तो weeds grow हो जाता है. So whether your crop is directly sown or transplanted, number of irrigations which you give, spacing between the crops, there are several factors which affect the crop weed competition. Then explain the factors affecting efficacy of herbicides. Now efficacy of herbicides तो बहुत सारा है. टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तुम सुबह कर रहे हो शाम को कर रहे हो. अगर शाम को कर रहे हो तो प्लांट हैज सुबह से लेकर अभी तक फोटोसिंथेसिस ही कर रहा है वो. ओके, इट हैज लॉट ऑफ शुगर रिजर्व्स. सो वट एवर हर्बिसाइड यू अप्लाई, द हर्बिसाइड्स विल पेनिट्रेट, सिस्टमिक हर्बिसाइड्स जाएगा अंदर एंड दे विल conjugate with the sugar compounds and their effect will be nullified. So majority of the pesticide which when you apply it in the evening, because there are plenty of sugars available with the plant, carbohydrates सुबह से वो photosynthesis कर रहा है, it can neutralize at least some amount of herbicides by conjugating them with the sugars. Then immediately before the rain अगर तुम कर रहे हो तो बारिश आएगा, पूरा वो herbicide को plants के ऊपर से साफ कर देगा. Do not apply before the rain. Then humidity कैसा है? Okay, so if you are applying when the conditions are
लेस ह्यूमिड ड्राई कंडीशन में अप्लाई कर रहे हो तो व्हेन यू स्प्रे इवापोरेट हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा जो सोल्यूशन वॉट एवर इट इज ऑन द प्लांट्स, इट विल इवापोरेट एंड द सॉल्ट विल रिमेन, herbicide salt will remain in the form of a crust on the leaf which may be toxic to the plant. So correct जो application का weather conditions है, it should be when the weather is warm and humid, then you should apply. Okay, dry conditions में नहीं apply करना है. Then when the conditions are dry or very cool, then the growth of the plant is very slow. तो क्या होगा, वो herbicide का absorption and translocation भी slow हो जाएगा, right? And even the morphology of the leaf, it will determine the efficacy. अगर broad leaved है, ऐसे spread हुआ है तो ज़्यादा उसके surface पे करेगा. अगर narrow leaved है, upright leaves है तो बहुत ज़्यादा herbicide, अगर contact herbicide है तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रहेगा नहीं, नीचे गिर जाएगा. So morphology of the leaf, wax coating on the leaves, all that determines. Okay. Then even if it is soil applied, organic matter in the soil, clay matter in the soil, clay ज़्यादा है तो clay absorb कर लेता है herbicides को. अगर organic matter ज़्यादा है तो it will absorb majority of the herbicides, so it will not be available for the weeds. So and age of the weed is also one of the factors. So there are many factors which determine the efficacy of herbicides. So plenty of material is available on the internet. See, everything is available on the internet. तुमको material बनाने के लिए internet is TNU की वेबसाइट्स, एंग्रो, कहीं से भी मिल जाएगा ये सारा. ओके, दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग. ओके, बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा इसके लिए, यहाँ से तुम नोट्स बना सकते हो. देन कमिंग टू एग्रोइकोलॉजी. सो एग्रोइकोलॉजी क्वेश्चंस वर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल क्वेश्चंस. इवन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा है सीधा एक तो. सो राइट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक तुमने पढ़ा होगा. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, द सेम आंसर, पॉइंट्स फ्रॉम द सेम आंसर कैन बी रिटन अंडर दिस. क्योंकि क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन को जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, सेम फैक्टर्स आर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन ऑल्सो. इफ यू टेक टेम्परेचर, क्लाइमेट ले लो सबसे पहले. क्लाइमेट में लोगे तो टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, दे अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन. अब तुम टेम्परेचर लोगे तो see, suitable temperature is required. Thermo period and photo period both are required for crop to complete its life cycle to produce yield. Example तुम wheat का दे सकते हो. So अभी wheat में क्या देख रहा है, climate change वाले से example ले सकते, वहाँ से example उठा सकते हो. wheat में क्या है, if the winter temperatures, okay, temperatures in last week of January and first week of February या February 1st to 10th के बीच में जो temperatures है, अगर वो raise होते हैं 1 to 2 degrees, if the temperature raises by 1 to 2 degrees, yield of wheat will be significantly affected. Even in case of rice also. Okay, so rice के केस में भी if temperature increases to 1 to 2 degrees Celsius and we don't use the varieties which are adopted to the changing climate, अगर वो varieties नहीं है, traditional varieties है, temperature increase हो रहा है तो yield will be affected. Then rainfall, drought can reduce the yield, floods can reduce the yield, plants may not be able to absorb nutrients and all. वो वाले सारे points से. ह्यूमिडिटी, ओके, सो ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ट्रांसपिरेशन वाले जो ट्रांसपिरेशन को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वहां से भी पॉइंट्स उठा सकते हो. लाइट इंटेंसिटी ऑल्सो अफेक्ट्स द yield of the crop. So you can take examples from different topics. ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो तुम बहुत सारे टॉपिक से पॉइंट्स गैदर कर सकते हो, राइट. And so especially those students who are preparing the notes, first thing what you should do is read the entire syllabus, then prepare the notes depending upon the previous year's question. क्योंकि इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन का जो आंसर है ना, डायरेक्ट बहुत कम बुक्स में मिलेगा या फिर बहुत ढूंढना पड़ेगा तुमको. इसका आंसर तुम बहुत सारे टॉपिक्स से गैदर कर सकते हो. इफ यू हैव रेड फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, इन टॉपिक्स में से तुम पॉइंट्स को गैदर कर सकते हो, राइट. देन ये तो पूरा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, राइट. व्हाट इज एल नीनो इफेक्ट, गिव कॉजेस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर. एल नीनो इफेक्ट क्या है और रीजन, कॉज का रीजन क्या, व्हाई इट हैपेंस एंड इसका इम्पैक्ट क्या है इंडियन एग्रीकल्चर में. नाउ ये तो हमको पता है. सो वेन एवर देर इज एल नीनो, the Indian monsoon is affected and there are chances that there can be drought.
क्यों? क्योंकि मानसून कैसे आता है हमारा, साउथ वेस्ट मानसून जो है, इट हैपन्स बिकॉज वी हैव ए लो प्रेशर एरिया ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हाई प्रेशर एरिया इन द इंडियन ओशन, स्पेशली अरेबियन सी के पास, मेडागास्कर उसके पास. नाउ बिकॉज वी हैव लो प्रेशर, the winds are directed towards Indian subcontinent and thus we have southwest monsoon. But El Nino के टाइम पे क्या होता है, एक तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे है ही तुम्हारा लो प्रेशर एरिया एंड अनदर लो प्रेशर एरिया डेवलप्स नियर द पेरुवियन कोस्ट. सो दिस हाई प्रेशर जो तुम्हारा जो विंड्स है यहाँ से, वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ पूरा का पूरा डाइवर्ट होने की जगह सम विल बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स द अदर साइड. सो हमको जो पूरा मिलने वाला था साउथ वेस्ट मानसून, वो पूरा नहीं मिलता है, राइट? यू माइट हैव रेड इन जियोग्राफी क्या है. एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं, whenever there is an El Nino, okay, whenever it has happened in the past, the correlation is only 40%. यानी India will be affected by severe drought, okay, the chances are only 40%. जो तुम्हारा कोरिलेशन है वो 40% ही है. यानी जब जब एल नीनो हुआ है 40% ऑफ द टाइम ही हमको ड्रॉट्स, सीवियर ड्रॉट फेस किया है. कोरिलेशन 40% ही है. सो ये तो देर आर 5 to 6 instances where we observed severe drought in India whenever there is El Nino. 4-5 जो मेन ईयर्स हैं उनके, जो तो ज्योग्राफी पढ़ा होगा वहाँ से लिख देना. देन डिस्क्राइब एनवायरमेंटल पोल्यूशन, the role of afforestation in minimizing the effect of environmental pollution. Now ये तो environmental pollution, okay, direct question है. So addition of contaminants to the air or water. So water में add करोगे तो it becomes unfit for human consumption or for other purposes. Addition of contaminants to the air, okay, in the form of gases or in the form of particulate matter, which can affect humans, crops, animals and other biological जो भी है biosphere. I don't remember the definition of environmental pollution accurately, okay, so मैं कहीं लिखा था, okay, contamination of the physical and biological components of earth/atmosphere to such an extent that normal environmental processes are significantly affected. So that is the definition of environmental pollution. Then उसके बाद environmental pollution के बाद तुम air pollution, water pollution भी लिख देना, okay. Then write the role of afforestation in minimizing the effects of environmental pollution. तो carbon sequestration, okay, क्या बोलते हैं, particulate matter minimize होता है. Then there are plants which can absorb heavy metals. कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्लाइमेट चेंज को कम करने में, वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. देन यू कैन राइट ऑल्सो द एग्जाम्पल्स वेयर प्लांट्स आर यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ हैवी मेटल्स. लाइक यहाँ तो एफॉरेस्टेशन की बात की है तो हम लोग ट्रीज का एग्जाम्पल ही देना है मेनली, बट यू कैन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स विच ऑल्सो हेल्प इन फाइटोरिमीडिएशन. Then you can also give the example of poplar tree where it has been used as phytohydraulics. In case of phytohydraulics where the movement of water is restricted, polluted water जो है तुम्हारा underground water table में, उसका movement को restrict करने के लिए there are examples where US Air Force has used poplar trees to contain the contaminated water to move from one area to another area. Okay, ज़्यादा spread होने से रोका है. So you can also give examples of plants which are नेरियम जैसे एग्जाम्पल है. रोड हाईवे के ऊपर हम लोग लगा रहे हैं पोल्यूटेंट्स को जो दे कैन हार्वेस्ट द पोल्यूटेंट्स. एंड ऑल्सो यू कैन गिव हर्ब्स, एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स विच आर यूज्ड फॉर हैवी मेटल एक्सट्रैक्शन. ओके, फाइटो एक्सट्रैक्शन के लिए, फाइटो रिमेडिएशन के लिए जो प्लांट्स है उनका भी एग्जाम्पल दे दो. दो इट डज नॉट कम अंडर एफॉरेस्ट्रेशन, ये तो फॉरेस्ट ट्रीज की बात कर रहे हैं. एफॉरेस्ट्रेशन में मेनली कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन वाले की बात कर रहे हैं हम लोग वहाँ पर, ठीक है. तो मेनली वो वाला पॉइंट के ऊपर रखो
and you can also give some examples where they are used for phytoremediation also. So that was about, okay, ek aur hai. Indian farmers usually choose crops and their varieties based on their socio-economic aspects and resources at their disposal. Critically comment. Now इस क्वेश्चन का आंसर तुमको ना फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक व्यास में भी मिल जाएगा पॉइंट्स. देर आर सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑल्सो इन्वॉल्व विच इन्फ्लुएंसेस द चॉइस ऑफ क्रॉप. क्यों? बिकॉज सम क्रॉप्स में रिक्वायर हैवी कैपिटल, बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए उसके लिए. कॉटन हो गया, तुम्हारा शुगर केन हो गया. फॉर ग्रोइंग दोज क्रॉप्स यू नीड हैवी कैपिटल. सो चॉइस ऑफ क्रॉप depends upon market availability, capital invested, capital which is required for investment, initial investment जो तुम crop initial supplies के लिए, fertilizer, seeds, उसके लिए कुछ crops के लिए ज़्यादा capital चाहिए होता है. So capital intensive crops, obviously if you have money then only you can grow those crops. So socio-economic aspects and resources, तो capital resources, वाटर रिसोर्स, इरिगेशन, कुछ क्रॉप्स के लिए इरिगेशन कंपलसरी है बट ड्राई लैंड एरिया है, वहां पर तुम वो क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते. मार्केट अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, अगर तुमने कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स ग्रो किया है तो मार्केट शुड बी नियर बाय और यू शुड हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सपोर्ट होना चाहिए ताकि तुम फ्लावर क्रॉप्स अगर ग्रो किया है तो मार्केट तक ले जाने के लिए. सो चॉइस ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस. आई मीन सोशल कंडीशंस में तुम ये भी ले सकते हो. सी टोबैको जैसे एग्जांपल है. सो टोबैको ग्रोइंग के लिए पंजाब एरिया बहुत सूटेबल है, इरिगेट लैंड सूटेबल है एंड इरिगेशन भी अवेलेबल है वहाँ पर. बट सिख रिलीजन में टोबैको कल्टिवेशन मना किया है. सो इवन दो दे हैव प्रॉपर कंडीशन, सोशल कंडीशंस, रिलीजन ऑल्सो प्लेस ए रोल वाइल चूजिंग द क्रॉप. वो एग्जाम्पल वहाँ दे सकते हो. ओके, सो यहाँ तो सिर्फ क्रॉप के बारे में बोला है बट यू कैन ऑल्सो गिव द एग्जाम्पल. फार्मिंग जनरली दे सकते हो, पिगरीज का भी दे सकते हो एग्जाम्पल. सी इन मुस्लिम हार्टलैंड्स पिगरीज इज बैंड, राइट? उनका रिलीजन अलाउ नहीं करता. सो यू कैन गिव प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स. सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड रिसोर्सेस में तुम क्रेडिट अवेलेबिलिटी, स्पेशली तुम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से पॉइंट्स उठा लो. दोज फार्मर्स आर पुअर, ओके, एंड दे डोंट हैव एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी. वो सारी चीज़ें, वो पॉइंट्स तुम इसमें ऐड कर सकते हो. देर आर मेनी पॉइंट्स विच यू कैन राइट अंडर दैट. सो दैट वॉज अबाउट एग्रो ecology. So in the next video we'll discuss about economics and extension. Okay, so that was about agronomy, weed science and agroecology. So thank you very much.